Good morning, everybody. Welcome to Lawseeko's Daily News Analysis. Today is 18 June 2020, and the topics that we'll be covering for today are first, history, the standoff, and policy worth reading. तो आजकल जो इंडिया एंड चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है एंड अभी रिसेंटली फेस ऑफ भी हुआ है उसको लेकर ऑथर ने ये आर्टिकल लिखा है where he talks about the history of standoffs and how Indian policy has dealt with such standoffs in the past. The second article for today is called A Prescription of Equitable and Effective Care. Now, this talks about healthcare and COVID-19 and how situation can be improved in the times that we are in. The third article is maternal health matters. Now, this article talks about how maternal health was a little bit ignored during the COVID crisis and how we could have worked more efficiently and how things could have worked more efficiently in such times. The last article is unpacking the reform. ये आर्टिकल अभी रिसेंटली अनाउंस्ड एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के बारे में है तो 3 ऑर्डिनेंसेस पास हुई थी and we will critically analyze them through this article. Coming to our first article, India-China standoff. So this particular article talks about the past and the policies that have been taken by the Indian government. उससे पहले some basics. So we have been covering India-China standoff अपने पुराने वीडियोस में. अगर आप अपने हमारे past 2-3 days के, in fact past 1 or 2 weeks के वीडियोस देखेंगे, we have been extensively covering India-China dispute. Again, हो क्या रहा है border पे along LAC, which is line of actual control, along line of LAC, India और China के बीच में एक standoff चल रहा है due to some border dispute. Now, इससे पहले अभी तक बात ये हो रही थी कि the governments are trying to talk and they are trying to resolve the dispute. However, अभी recently ही गलवान वैली में एक फेस ऑफ हो गया दोनों फोर्सेस के बीच में due to which जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट आई है at least 20 soldiers have Indian soldiers have died and अब जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस रीजन में वी विल गेट टू नो थ्रू मीडिया रिपोर्ट्स आने वाले समय में अगले 2-3 दिन में पता चलेगा. तो इस आर्टिकल में ऑथर ने क्या किया है, he has analyzed the history of India-China standoffs and the policy that India has taken to deal with such standoffs. And ये बहुत important है to look at these policy because खाली factually क्या हो रहा है ये तो important है ही, लेकिन how the countries deal with it on an internal level, on a policy level, it is also important for an exam aspirant to understand those particular issues. तो बेसिकली हुआ क्या था कि 1959 में इंडिया ने दलाई लामा को रेफ्यूज दिया था. नाउ दलाई लामा को फॉलो करते हुए बहुत सारे तिब्बतन्स भी, बिकॉज जो दलाई लामा है ही हैज अ वेरी बिग लीडरशिप स्टेटस. So a lot of Tibetans followed him and they came to India. Now this you can see अगर आप लद्दाख के रीजन में जाएंगे या फिर आप मनाली से आगे मैक्लोडगंज से आगे जाएंगे, और even in Delhi there are little settlements of Tibetan refugees. So you can find them in India, especially in North India. So this happened in 1959 when Dalai Lama was even refugee in India. Now, what China did now China definitely didn't like this fact that India gave a refugee status to Dalai Lama. So China started plotting and उस टाइम पे उन्होंने क्या किया कि they began demanding a self-determination in Kashmir. So they started saying that Kashmir should be given a self-determination and they should have a right to self-determination. So they started launching this type of propaganda. Now, even China के अपने जो मीडिया चैनल्स है, जो रेडियो है और टीवी है, वहाँ पे they started launching propaganda war against India. They started saying things against India so that China की जो अपनी population है, they also develop a perception against India. Then एक और चीज जो चाइनीज फोर्सेस ने उसी टाइम पे, चाइनीज फोर्सेस ने नहीं, rather चाइनीज गवर्नमेंट ने उसी टाइम पे करना शुरू की, was that इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो मिजोरम एंड नागालैंड स्टेट्स हैं, वहाँ के जो डिसिडेंट्स होते थे, लाइक द पीपल सिटीजन्स हु यूज्ड टू अपोज गवर्नमेंट पॉलिसी, China started giving refuge status to them
So they became those Mizo and Naga population people who were dissidents of Indian government. They got refugee in Chinese territory. They became refugee in Chinese territory, and Chinese government also started providing training, military training to them. So which was also not in India's interest, because इंडिया के अपने लोग अगर कोई दूसरी कंट्री इंडिया में जो रिबेल्स है उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देगी, then it's definitely not in India's favor. Now, one more thing that Chinese government did around that time was they promoted something called a five finger theory. So फाइव फिंगर थ्योरी में एक्चुअली उन्होंने क्या बोला था, दे सेड फाइव देयर आर फाइव एरियाज व्हिच आर fingers of Tibetan palm. So Tibet is the palm, and there are five areas. The five areas are Ladakh, Nepal, Sikkim, Bhutan, and Northeast Frontier Agency NEPA, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, इंडिया में उसको नेपा बोलते हैं. So they said these are five fingers of the Tibetan palm, and China will liberate these areas. So this was the whole propaganda war that was going on in China against India, saying that five fingers of the Tibetan palm will be liberated. अब ये सब चल ही रहा था. इंडिया चाइना वॉर हुआ 1962 में. चाइना वन द वॉर. हाउएवर वी विल एनालाइज कि इंडिया ने उसके बाद क्या पॉलिसी डिसीजंस लिए which really helped India in the long run. So the author has divided them into three prong strategies. The author says पहला जो decision, major decision था was about border management. So India started building its border infrastructure. एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया IFAS करके, इंडियन फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. So this IFAS was on the lines of IAS, that is Indian Administrative Service, and IFS, that is Indian Foreign Service. तो इन्हीं के लाइन पे एक IFS नाम का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया. ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए. नाउ दिस ऑफिसर्स जो अपॉइंट होते थे ये बॉर्डर रीजन पे, स्पेशली नेफा का जो रीजन था, दैट इज आवर अरुणाचल प्रदेश, वहां पे पोस्टिंग ऑफिसर्स की होने लगी. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर स्पेशल डेस्क बनाया गया जहां पे आके ये ऑफिसर्स रिपोर्ट करते थे, सो दैट एनी इम्प्रूवमेंट दैट दे सजेस्ट कुड बी मेड अलोंगसाइड दीज बॉर्डर एरियाज. तो दिस वे बॉर्डर का जो एरिया था उसको स्ट्रेंथन करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने का बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा. नाउ IFAS अब पोजीशन में नहीं है. नाउ दिस होल सर्विस, इसमें जो भी काम होता था ये अब या तो इंडियन आर्मी करती है या फिर बॉर्डर BRO जो ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर कर दिया गया है. बट ये कहा जा सकता है कि द होल प्लान ऑफ strengthening the border infrastructure, this was started by IFAS, and this was the government policy that initiated this whole development. Now the second prong that the article talks about is outreach and treaties. So author says कि ये पूरे सिचुएशन से, चाइना सिचुएशन से डील करने के लिए इंडिया ने ट्रीटी साइन करना था शुरू कर दिया. Now these treaties were signed with neighbors, that is Nepal, Bhutan, countries like Nepal and Bhutan, and they were also signed with certain regions. तो काफी सारे रीजन्स थे जो इंडिया का ओरिजिनली पार्ट नहीं थे, लेकिन इवेंचुअली दे एसीडेड इनटू इंडिया, यानी कि दे बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया. तो फॉर एग्जांपल लद्दाख का जो रीजन है वो तो जम्मू एंड कश्मीर के साथ ही इंडिया का पार्ट बन गया था 1947 में. देन नेफा, जिसे हम अरुणाचल प्रदेश, अभी मैंने आपको बताया, जो नेफा का जो एरिया है वो 1951 में इंडिया का पार्ट बन गया था. सिक्किम 1975 में इंडिया का पार्ट बन गया था. So India started building a strong relationship with these areas against border to strengthen its position with regard to China. Similarly, दूसरे जो neighboring countries थे उनके साथ भी इसी तरह की treaties साइन होने लगी. अब ये ट्रीटीज में एक यूनिक टाइप की रिलेशनशिप आने लगी जिससे दोनों कंट्रीज को फायदा हो, विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाए. अब दिस इज जनरली द पॉलिसी व्हेन ट्रीटीज आर साइन बिटवीन टू कंट्रीज. तो बॉर्डर्स ओपन होना शुरू हो गए, एजुकेशन की बात होने लगी, यूथ डेवलपमेंट की बात होने लगी, एंड दिस हेल्प्ड बोथ द कंट्रीज टू अचीव अ विन विन सिचुएशन.
नाउ इसका ये ट्रीटीज का एक स्पेशल एडवांटेज अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि चाइना हैज स्टिल नॉट बीन एबल टू बिल्ड अ रोड थ्रू भूटान। मतलब जैसा कि आप जैसा अगर आप चाइना और पाकिस्तान की बात करें so there's a Pakistan China economic corridor, that whole economic corridor that has been developed through Pakistan, और चाइना का ये बहुत बड़ा प्लान है कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर को डेवलप करे, so it has built a road through Pakistan. Now such road has not been able to develop through Bhutan. क्यों? क्योंकि भूटान और इंडिया की एक ट्रीटी है और उस ट्रीटी के अंदर ये बात अग्री कर दी गई है कि भूटान के जो भी एक्सटर्नल पॉलिसी से रिलेटेड मैटर होंगे वो इंडिया के थ्रू पास होंगे। तो इंडिया विल गाइड भूटान इन इट्स एक्सटर्नल पॉलिसी मैटर्स एंड इंडिया हैज नेवर सपोर्टेड चाइना टू बिल्ड अ रोड थ्रू भूटान, इसीलिए अभी तक भूटान के साथ रोड नहीं बनी है। सो ये एडवांटेज है जो इंडिया ने डेवलप किया बाय दिस ट्रीटी रिलेशनशिप दैट इज साइन। Now, third prong that the author talks about it is with respect to Tibet. So he says कि we 1959 में दलाई लामा came to India and उसके वजह से इंडियन टेरिटरी की और तिब्बतन पॉपुलेशन की जो रिलेशनशिप थी it became very strong because Dalai Lama was in favor of India and जो तिब्बतन population है they follow the Dalai Lama quite diligently and religiously, and therefore the whole population came in favor of India. And this also helped Indian territory and Indian government a lot. ये तीन तो pronged strategy हुई government की which helped it. But the author says कि अभी again time आ गया है when India needs to reconsider its stand with respect to these policies. Firstly, because दलाई लामा का सक्सेसर डिसाइड होने का टाइम आ गया। सो दलाई लामा हैज अ ह्यूज फॉलोअरशिप बट a time will come when he will need a successor and so उनके पोटेंशियल सक्सेसर है जिनका नाम है करमापा लामा। नाउ ही केम टू इंडिया बट अभी उन्होंने यूएस की सिटीजनशिप ले ली है। अगर उन्होंने यूएस की सिटीजनशिप ले ली तो इंडिया में जो लार्ज नंबर ऑफ तिब्बतन पॉपुलेशन है उनकी इंक्लिनेशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू वेदर दे वांट टू गो टू चाइना, वेदर दे वांट टू रिमेन इन इंडिया, वो काफी लिम्बो में आ जाएगी अगर कोई पोटेंशियल सक्सेसर डिसाइड नहीं हुआ हु इज इन फेवर ऑफ इंडिया। So that is one thing that India needs to worry about or have a consideration of. Secondly, India also needs to think about its viewpoints on Jammu and Kashmir. तो जम्मू एंड कश्मीर में जो स्टेटस में चेंज आया है थ्रू द 2019 में जो अमेंडमेंट करे गए हैं उसके बाद चाइना की पॉलिसी टुवर्ड्स दिस होल इंडियन डिसीजन हैज नॉट बीन वेरी फेवरेबल टुवर्ड्स इंडिया। सो चाइना हैज अपोज्ड इंडियाज डिसीजन जिसके वजह से जो सिक्योरिटी मैट्रिक्स है अलोंग द नॉर्दर्न कश्मीर रीजन ऑफ इंडिया वो भी काफी लिम्बो में आ गया है। So all these decisions India even though past में policy considerations काफी अच्छे गए हैं लेकिन अभी again time आ गया है कि India reconsider करे अपनी policies with regard to its border and we will see that the government does not lose sight of what lies ahead and what lies ahead on its border with regard to its policy. The second article for today is public-private healthcare in India. So again because COVID is everywhere and everybody is suffering from it. अगर कोई टर्म यूज करना चाहो तो इट इज यूबिक्विटस, हर जगह है। अगेन बिकॉज ये हर जगह है तो इसके बारे में डिस्कशन करना तो अनअवॉइडेबल है। सो वी हैव टू हैव वन और टू आर्टिकल्स टू डिस्कस अबाउट every aspect of COVID. So today we will talk about healthcare and दिस पर्टिकुलर आर्टिकल जो हिंदू में लिखा हुआ था इन्होंने बात किया है कि कैसे अभी तक हमारी जो पॉलिसी चल रही थी हेल्थ केयर में टू डील विद कोविड क्या थी एंड हाउ वी नीड टू डील विद इट इन फ्यूचर। तो ऑथर बोलते हैं कि फियर है, एंजाइटी है, अनसर्टेनिटी है। ऑल गवर्नमेंट्स आर फेसिंग दिस फियर, एंजाइटी एंड अनसर्टेनिटी बट व्हाट वी नीड इज अ पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन। तो ऑथर सेज कि पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के बिना आगे चल के we will not be able to deal effectively with this pandemic and
ही सेज कि अभी तक तो हम प्राइमरी जो टास्क है हमारा उसको हम अवॉइड कर रहे थे। तो अंटिल नाउ जितना भी हेल्थ केयर सेक्टर था इंडिया में, वी वर ऑल फोकसिंग ऑन प्रिवेंशन ऑफ द एपिडेमिक। तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर पीपल होते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, एवरीबडी वाज फोकसिंग ऑन प्रिवेंटिंग। वी वर कंडक्टिंग टेस्ट, वी वर फोकसिंग ऑन आइसोलेशन, क्वारंटाइन, जो कॉन्टेक्ट्स आए हैं पॉजिटिव लोगों के उनको क्वारंटाइन करने में। तो जो भी अवॉइडेबल, जो भी चीजों से कोविड अवॉइड किया जा सकता था अभी तक फोकस था उस पे। However, अब टाइम आ गया है दैट वी शिफ्ट आवर फोकस टू प्राइमरी टास्क। जो हेल्थ केयर सेक्टर का प्राइमरी टास्क होता है, वी नीड टू फोकस आवर अटेंशन टू दैट इज प्रोवाइडिंग क्लिनिकल केयर एंड रिड्यूसिंग mortality. So we all know that now COVID is here. Now we will have to learn to live with it, and people will be found positive. So our aim should not be entirely focused on just doing the testing or just making people isolate themselves. Rather, our focus should be on providing care. तो अगर अगर जस्ट जनरली बात की जाए तो मेजर केसेस जो होते हैं वो कोविड के वो माइल्ड होते हैं, जो अपने आप ही रिजॉल्व किए जाते हैं, हो जाते हैं। लेकिन देयर आर सर्टेन सेक्टर ऑफ द पॉपुलेशन, जैसे कि हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है या फिर पीपल हु आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम सर्टेन डिसीजेस, उनका थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है टू while dealing with COVID. तो अगेन द ऑथर सेज कि उन लोगों को एक जो क्लिनिकल केयर है वो प्रोवाइड करना प्राइमरी ड्यूटी होना चाहिए, प्राइमरी टास्क होना चाहिए हेल्थ केयर सेक्टर का। एंड हॉस्पिटल्स नीड टू फोकस ऑन पेशेंट मैनेजमेंट and prioritize ICU units, etc., rather than just isolating the patients. Secondly, what we also need to do is to combat fear. So the author says कि आजकल हो क्या गया है, because we have created such a large amount of fear in the minds of people. जो public है, general public, it is reluctant to come to hospital. एंड क्योंकि वो हॉस्पिटल नहीं आना चाह रहे हैं तो लोगों को पता नहीं चलता है कब उन्हें डिजीज हो गया है, एंड दे डाई इन आइसोलेशन ओनली. So we need to prevent all of that. We need to generate confidence in people to come to hospital. अब ये जो सारा काम है, that is providing primary health care and combating this fear of health hospitals, ये काम खाली प्राइवेट सेक्टर या खाली पब्लिक सेक्टर अलोन नहीं कर सकता है. For that, private sector needs to come together with public sector. तो author क्या बोलते हैं? He says that government needs to send clear message to people that hospitals are where care lies and people need to visit hospital. Then what government can also do is they can provide cost reimbursement. तो the government जो private hospitals जो testing करते हैं, अगर वो कुछ reimbursement दे रहे हैं patients को, अगर वो किसी कुछ फी में डिडक्शन दे रहे हैं पेशेंट्स को, तो गवर्नमेंट को भी रिइंबर्स करना चाहिए इस बात को प्राइवेट हॉस्पिटल को, so that private and public sector work together and the patient doesn't have to bear the burden of all the costs. Then again, one more example through which private and public sector can come together is कि medical जो staff होता है, whether it is in the private sector or public sector, उन medical staff को adequate facilities provide की जाए. जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हैं, जो पर्सनल प्रोटेक्शन गियर्स हैं, वो सब, एंड इन्फेक्शन कंट्रोल में उन्हें ट्रेन किया जाए. तो ये सारे जो प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं उनके लिए पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को दोनों को साथ में आने की जरूरत है, सो दैट वी कैन इफेक्टिवली डील विद दिस क्राइसिस. द थर्ड आर्टिकल फॉर टुडे इज अबाउट मैटरनल हेल्थ केयर. तो ये आर्टिकल टॉपिक कैसे आया कि रिसेंटली नोएडा का जो एरिया है दिल्ली एनसीआर में, a pregnant woman who was about to deliver a child, वो हॉस्पिटल्स टू हॉस्पिटल ढूंढ रहे थे बिकॉज उनको कोई ले नहीं रहा था. नन ऑफ द हॉस्पिटल वाज agreed to take her in for the delivery, and उसके वजह से she died. So the pregnant woman died during the delivery while looking for the hospital. And ये काफी gruesome incident है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, which is why the author wrote this piece. तो इसे कि ये जो इंसिडेंट है ये हुआ नोएडा में, जो हमारे नेशनल कैपिटल है उसके रीजन में सिचुएट करता है. नाउ व्हेन सच एन इंसिडेंट कैन हैपन इन अ नेशनल कैपिटल रीजन, आप इमेजिन करिए कि जो कंट्रीज के दूसरे कोने हैं जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी ही पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है, वहां पे क्या सिचुएशन होती होगी. प्लस
अभी जो लॉकडाउन अनाउंस हुआ था जिसके अंदर पीपल डिडंट नो व्हाट टू डू, वेयर टू गो, उसमें जो मैटरनिटी जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है, मैटरनल हेल्थ, उसका क्या सिचुएशन हुई होगी. We need to analyze this so that we can all question the government on this. तो अभी तक की जो स्टेट की पॉलिसी है विद रिगार्ड टू पब्लिक हेल्थ केयर इज दैट टू एनकरेज maternal well-being. स्टेट ने क्या किया हुआ है, दे से दैट प्रेग्नेंट वुमेन वो डिलीवरी के लिए पब्लिक हॉस्पिटल में आ सकती हैं, and rather the state has incentivized pregnant women to come to public hospital by saying कि उनको कुछ पैसे मिलेंगे if they come to public hospital for the delivery. तो ये स्कीम थी अभी तक जो चल रही थी. लेकिन जो कोविड के बाद जो लॉकडाउन हुआ है उसमें we don't know what happened. There was no specific policy to deal with such situations. So if a pregnant woman wants to deliver a baby and wants to go to a hospital और किसी हॉस्पिटल ने उसे मना कर दिया, there was no bar on that. तो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ही नहीं थी जिससे इस सब से डील करने के लिए. एंड यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो ऑथर इस आर्टिकल में डील करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ऑथर बोलते हैं कि एक तरफ तो गवर्नमेंट बोलती है कि कम टू पब्लिक हॉस्पिटल एंड जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको इंसेंटिव दिया जा रहा है टू कम टू पब्लिक हॉस्पिटल. ऑन द अदर हैंड जब एक लॉकडाउन अनाउंस होता है तब कोई भी मेजर नहीं लिया जाता है ऑन हाउ प्रेग्नेंट वुमेन विल बी डेल्ट विद. So this is the dichotomy that the government created around this time, and इसको ज़्यादा effectively डील किया जा सकता था जो नहीं हुआ. लेकिन लॉकडाउन अनाउंस होने के एक महीने बाद एक पॉलिसी आई थी गवर्नमेंट की जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर कोई वुमन है जो प्रेग्नेंट है एंड शी वांट्स टू डिलीवर अ चाइल्ड, she can be admitted in a hospital if she has been recently tested negative. यानी कि अगर वो recently negative tested हुई है तो ही उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जा सकता है. बट अगेन ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है बिकॉज व्हेन अ वुमन इज प्रेग्नेंट एंड शी इज गोइंग इनटू लेबर, उस टाइम पे कोविड का टेस्ट होना और कोविड का टेस्ट भी एक दिन बाद उसके रिजल्ट आते हैं, ये सारा सिचुएशन उस टाइम पे हो ही नहीं पाएगा ये पूरा प्रोसीजर. तो दिस वाज नॉट इफेक्टिवली डेल्ट विद. और ये पूरे प्रोसीजर में इतनी अनसर्टेनिटी होने की वजह से अराउंड 900,000 प्रेग्नेंट वुमेन जो क्रिटिकल केयर की नीड में थी उन्होंने बहुत सारे हर्डल्स फेस किए ड्यूरिंग द लॉकडाउन विच वाज प्रॉब्लमैटिक एंड नहीं होना चाहिए था ये. तो ऑथर सेज कि पॉलिसी मेकर्स जो है हेल्थ सेक्टर में दे नीड टू स्क्रूटनाइज कि क्या हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में क्या लैकिंग है जो ये इशू पूरा अराइज हुआ. एंड because we need to deal with it more effectively, therefore this scrutiny is very very important so that the government can again develop a trust in pregnant women. The last article for today is ordinances on agriculture. So recently government ने एक 3-way amendments and ordinances pass करे हैं in the agriculture sector. Now इस पे बहुत mixed opinions आ रहे हैं. Some people are really appreciating all these 3 ordinances. On the other hand, some people are little bit critical of it. ये जो आर्टिकल है ये एक मिक्स्ड रेस्पॉन्स दे रहा है. इट क्रिटिकली एनालाइजेस ये तीनों सेक्टर में जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में 3 एरियाज में जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं ऑर्डिनेंसेस के थ्रू, एंड अल्टीमेटली ऑथर अपना ओपिनियन दे रहे हैं. तो पहले जस्ट इन ब्रीफ, अगेन वी हैव कवर्ड दिस इन आवर प्रीवियस वीडियोस, लेकिन जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूंगी. तो पहला जो अमेंडमेंट, पहला जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है वो हुआ है एपीएमसी के एक्ट के ऊपर. एपीएमसी इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, और इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि नाउ फार्मर्स आर फ्री टू सेल देयर प्रोड्यूस वेदर दे वांट टू सेल इट इन द मंडी, या फिर अगर वो मंडी के बाहर भी बेचना चाहते हैं तो वो बेच सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डिनेंस. Then there's the second ordinance on Essential Commodities Act, and the third ordinance is on contract farming. अब ऑथर इन तीनों ऑर्डिनेंस को एनालाइज करते हैं, लेकिन उनका पहला पॉइंट तो ये है कि ये सब एक ऑर्डिनेंस के थ्रू क्यों पास हुआ. तो ऑथर सेज कि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ये तीनों चेंजेस लाए गए हैं ये ऐसा नहीं है, दे आर वेरी नोबल.
रादर इन पे डिस्कशन चल रहा था बहुत टाइम से. The governments were trying to bring about these changes. But now these changes have been brought in such a hurried manner in the form of an ordinance कि थोड़ा सा डाउट होता है about its sincerity. And we all know कि अगर कोई प्रॉपर लेजिस्लेटिव प्रोसेस से रादर इंस्टेड ऑफ एन ऑर्डिनेंस अगर एक बिल लेजिस्लेशन के फॉर्म में ये पास होता तो फिर कंसल्टेशंस और कमेंट्स रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स से के साथ होना गवर्नमेंट का ज्यादा पॉसिबिलिटी थी उसकी. लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस के थ्रू पास हुआ है इसमें स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशंस का थोड़ा एब्सेंस है विच इज अ लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक. देन द ऑथर सेज कि जो एपीएमसी में अमेंडमेंट्स हुए हैं उससे स्टेट लेवल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी. क्यों? क्योंकि ही टॉक्स अबाउट यूनियनाइजेशन ऑफ मिडिलमैन. तो ही सेज कि जब मंडी में जाके फार्मर्स अपना प्रोड्यूस बेचते हैं वहां पे मिडिलमैन का एक यूनियन टाइप का बना होता है. तो वो यूनियन बने होने की वजह से वो अपनी क्लाउड मतलब अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं एक जो फार्म प्रोड्यूस का प्राइस होता है उसके ऊपर. तो मिडिलमैन अपनी पावर एक्सरसाइज करके वो प्राइस में थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. अब ये मिडिलमैन की पावर जो थी इसको जो मंडी का पूरा सिस्टम है वो अवॉइड करता था. तो जो ये मिडिलमैन है इनको हम अरहतियाज भी बोलते हैं. इनका मिसयूज ऑफ पावर अवॉइड हो जाता था बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मंडीज. लेकिन एपीएमसी ने मंडी को अब मैंडेटरी नहीं किया है. तो क्योंकि फार्मर अब एक मंडी में जाके भी अपना प्रोड्यूस बेच सकता है और बाहर भी बेच सकता है, द होल रोल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ मंडी हैज बीन अवॉइडेड बिकॉज ऑफ विच देयर इज अ फियर कि ये जो मिडिलमैन है इनकी पोजीशन को मिसयूटिलाइज कर सकते हैं एंड प्राइस को अफेक्ट कर सकते हैं. इसीलिए ये वेल थॉट ऑफ कहा जा सकता है कि ये डिसीजन उतना वेल थॉट ऑफ नहीं है और फार्मर्स के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं. अगेन नाउ द ऑथर आल्सो सेज कि ये अमेंडमेंट की वजह से ऐसा हो सकता है कि स्टेट अपना वाइटल रेवेन्यू लूज कर दे. क्योंकि एक जो मंडी इंफ्रास्ट्रक्चर होता था जहाँ पे फार्मर्स को मैंडेटरी था जाके अपना प्रोड्यूस बेचना, उसमें स्टेट के पास रेवेन्यू आती थी एंड स्टेट को यूटिलाइज दिस रेवेन्यू टू इम्प्रूव इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा. बट क्योंकि अब फार्मर्स के लिए मैंडेटरी नहीं है टू गो टू द मंडीज, देयरफॉर स्टेट की रेवेन्यू कम हो जाएगी और ये स्टेट के लिए थोड़ी सी हार्म की बात है. थर्डली ऑथर आल्सो सेज कि अभी जो थर्ड ऑर्डिनेंस है दैट इज ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसके बारे में ऑथर नेगेटिवली नहीं बात करते, इसके ऑथर अप्रिशिएट करते हैं. तो ही सेज कि बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट अब जो फार्म प्रोड्यूस होगा इट विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट लॉज. मतलब पहले क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होती थी तो प्रोड्यूस होने के बाद में द अग्रीमेंट्स बिटवीन फार्मर्स and companies would take place, but now those agreements can take place on a prior basis. मतलब पहले companies farmers को बोल सकती है कि आप ये चीज हमारे लिए प्रोड्यूस करो and then the farmers can produce those things, which can also be a system of contract farming. So author says this will work effectively for farmers because अब कोई भी laws उनके लिए hinder नहीं करेगी to utilize their produce in an effective manner. So this is the positive point of the amendments according to the author. And overall, in the end, the author says कि ये जो तीनों ordinances पास हुई है, ये शांता कुमार कमेटी की जो recommendations थी 2014 में, उसका एक precursor टाइप का लग रही है, because eventually जो committee report थी वो थी about restructuring Food Corporation of India, and through these small steps eventually what the committee recommended वो अचीव किया जा सकता है. एंड ये जो भी डिसीजंस लिए गए हैं गवर्नमेंट के, दे आर बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. प्राइमा फेसाई ऑथर को लगता है कि कुछ इनके फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं. एंड इन द एंड ही सेज दैट जो सारे रिफॉर्म्स होते हैं, सारे जो ऑर्डिनेंसेस पास किए जाते हैं, दे आर नॉट नेसेसरली रिफॉर्म ऑन द स्केल ऑफ 1991. तो 1991 में इंडिया में जो बड़े रिफॉर्म्स हुए थे लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के लाइंस पे, some people are comparing these agriculture reforms to them. तो author says कि सारे 1991 के रिफॉर्म से कंपेरेबल नहीं किए जा सकते. However, we cannot say that these are entirely bad for the sector.
Rather, there are certain positive elements and certain negative elements, and we need to look at these reforms holistically to develop our viewpoints on them. That's all. The quiz question for today is: Panchsheel Agreement was signed between which nations? India and Pakistan, India and China, India and Bhutan, India and Bangladesh. Thank you.